بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رکسانہ آ رہی ہے اگلے ماہ کی 12 کو۔ ماموں جان نے خط افضل سے لے کر بیوی کو اطلاعات لی اور خود ککڑ کا انتظام کرنے چل دیے۔ خالہ کا خط کبھی ہمارے پتے پر آتا تو کبھی اجمل ماموں کی طرف۔ بہرحال رہتی وہ ماموں کے ہاں ہی تھی۔ آنا جانا کہیں بھی ہو، بیگ ان کا اور دوسرے مہینوں میں بسیرا ان کا ماموں کا گھر میں ہی ہوتا۔ افضل بھائی کوثر باجی کی منگنیاں خالہ رکسانہ کے گھر ہوئی تھی اور صدیقہ 8ویں میں تھی، سب سے چھوٹی تھی۔ تعلقات بڑے گرم جوش تھے اور اس میں دوسری برادری کے ساتھ ہم بھی شامل تھے۔ امی اور رکسانہ خالہ کا وٹا سٹا ہوا تھا۔ خالو میرے تایا بھی تھے۔ کیا لکھا ہے؟ ابو کو آپ ٹھیک طرح سے لفظ سجائی نہیں دیتے تھے، سو خط پڑھنے اور جواب لکھنے کی ذمہ داری میری ہوئی۔ 8ویں کلاس میں ہی میرا خط بہت اچھا تھا، سب سراہتے تھے، تو خط لکھنے کا سہرا میرے سر پر باندھا تو گویا چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ندیہ اور خاور جو 6 اور 7ویں کلاس میں تھے، ان سے مجھے اہمیت مل گئی تھی۔ 6 تاریخ کو گرمی کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، بچوں کے کپڑے بنا لیے ہیں، اگلے دن کی تیاری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سب گھر والوں کو سلام۔ میں نے خط پڑھ کر گویا کوئی دریا پار کر لیا تھا۔ ابو نے اینک ایک طرف رکھ دی تھی۔ اچھا پیاز وغیرہ لے لیں میرا۔ امی من بھر پیاز خریدا کرتی، جو ساری گرمیوں سے ذرا کم عرصے میں چارپائی کے نیچے مٹی کے صاف فرش پر پڑی رہتی۔ پلاؤ بنانے کے لیے چاول اکٹھے صاف کر کے مٹی کے گھروں میں اور آٹا پسوانا، سب کام ایک ساتھ ہو جاتے تھے۔ گرمی کی دوپہر میں جب کسی کو بے وقت بھوک لگتی، امی روٹی ہے کھارے کے نیچے، سالن نہیں، کوئی آواز لگاتا، ہاں تو ایک پیاز توڑ لے، پھر چارپائی کے پائے سے پیاز توڑ کر روٹی کے اوپر اور تھوڑا سا نمک چھڑک کر بھوک مٹا لی جاتی۔ گرمی کی چھٹیوں میں میرا دل بھی بڑا خوش تھا۔ گرمیوں کا کام کون کرے بھلا، ایک ہی بار مار کھا لیں گے، پھر سلیبس سارا سردیوں میں ختم کر لیں گے۔ اتنی گرمی میں پڑھائی، میرا تو دل ہی نہیں مانتا تھا۔ سارا وقت دن ٹیوب ویل پر نہانے کے سوا مجھے کہیں چین نہ پڑتا۔ خاور البتہ ماسٹر جی سے لڑتا تھا، وہ پھر پڑھا کے آگے کتابوں پہ جھک ہی جاتا تھا۔ کبھی کبھی ندیہ بھی، مگر نہانے میں نہانا نہیں چھوڑتی تھی۔ صبح ہی صبح امی سارا کام کر کے چھام تلے 4 چارپائیاں ڈال دیتی، ابا جی زمینوں پہ اور میں امی کے ساتھ تھوڑا بہت ہاتھ بٹا کے گھر کے اندر وسیع صحن میں لگے ٹیوب ویل پہ جو مزہ ایسے کھلے پانی میں نہانے میں اور کہاں، یہ تو مجھے ہی پتہ ہے بس۔ پیاز لے آیا ہوں، چاول صاف ہو گیا کہ نہیں؟ ابو نے پوری صحن میں ہی رکھ دی تھی۔ پچھلے سال نواسے سے پیاز خریدی سی، ان کی پیاز تو اس دفعہ سیدھا منڈی پہنچ گئی تھی۔ اب دوسرے گاؤں چک بارہ سے پیاز لائے تھے۔ سارا ہی ہو گیا ہے ماہا کے ابا، پر تیرا برا اللہ جانے کتنے دن یہاں رہے بھی کہ نہ۔ جتنا اجمل سے اسے کھلا سکتا ہے نا، اتنا تو شاید ہم سے ہی نہ ہو سکے، اور وہ زیادہ ٹکیں گے بھی نہیں ادھر۔ امی اداس ہی تھی۔ امی کا بڑا دل کرتا تھا کہ بہن سے کوئی دکھ سکھ کرتی۔ نانی کے مرنے کے بعد امی کا دل بڑا ٹوٹ گیا تھا۔ سب سے چھوٹی تھی، سب سے زیادہ تنہائی بھی ان کے حصے میں آئی تھی۔ نانی سے ان کا بڑا گہرا رشتہ تھا۔ اجمل ماموں کی امی سے کم ہی بنتی تھی۔ وجہ عمر کا فرق، زمینوں کا بھی فرق تھا۔ ماموں کی زمینیں تھیں اور افضل بھائی کی کھاد کھلی کی دکان الگ۔ ماموں کے اندر غرور بہت تھا۔ ان کی لمبی سیاہ گردن میں سویا سریا فٹ تھا۔ خود کو کوئی اونچی شے سمجھتے تھے۔ مجھے تو ان سے بڑی چڑ ہو گئی تھی۔ بھائی جو کترائے اسے منہ نہ لگاؤ، مگر امی کو کون سمجھائے۔ کھلے چاندنے نہاتے صحن میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ خاور اور ندیہ پہلے لڑتے بھاگتے پھر رہے تھے، اب سو چکے تھے۔ ہوا ہی اتنی سجیلی اور کھلی اور اوپر سے بدلتی رت۔ امی اور ابا کے دکھ سکھ جاری تھے۔ میں نے ہلکا سا خیز ندیہ کے اوپر ڈالا اور چھت پر چلی آئی۔ دور تک اندھیرا پھیلا تھا۔ اونچی چھت سے تا حد نظر فصلیں ہی فصلیں تھیں، جوار، باجرہ اور کپاس کے کھیت۔ ہاں، کپاس کی تو کل چنائی بھی تھی، جو اذان کے فوراً بعد شروع ہوئی۔ پھر صفائی اور ونڈائی تقسیم۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں پانی کی خوشبو بھی تھی۔ شاید چاچا اللہ داد کے کھیتوں کو پانی لگ رہا تھا۔ آج انہی کی باری تھی۔
पिछवाड़े वाला गेट ट्यूबवेल चल रहा था। सारा दिन भी चलता रहा था। माही नी माही, अम्मा की आवाज़ आई। मैं सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। जी अम्मी। अब सो जा, रात बहुत हो गई है। अम्मी और अब्बू भी लेट चुके थे, मैं भी लेट गई थी। 3 दिन बाद इतने सारे मेहमान, हसन, एहसन, मुबशरा, इसाल, अपी और रक्साना खाला में खुश थी। खूब खिला गुला हो रहा था। इन्हें पानी में छलांगे मार के दिखाएंगे, और हाँ, नहर पर तो ज़रूर ही ले जाएंगे। खावर और नदिया और मैं मिलके इन्हें छोटी मछलियाँ भी पकड़ के दिखाएंगे। छोटी सी नहर के मटियाले पानी में मछलियाँ भी होती थी, जिन्हें बच्चे पकड़ते थे, और कभी कभार तो ज़रा बड़ी मछली भी आ जाती थी हाथ में। मेरे दिल में बहुत सारे मंसूबे थे, फिर नींद ने मेरे गिर्द भी घेरा तंग कर दिया था। सुबह ही सुबह का वक़्त था। अम्मी अपलों की राख इकट्ठी कर रही थी, और खावर अपने गंजे बोतल में गन के डाल रहा था। नीले पीले हरे सुनहरी वो कांच की बड़ी सारी बोतल बहुत संभाल के रखा करता था। नदिया अपनी गुड़िया और इनके कपड़ों को छुपा छुपा के रखती थी। क्या हो रहा है? सारे बड़े कच्चे में पंगलों की किताब थी, और संदूक अब पर ईंटों पे दड़े थे। 2 गायब है तुमने चढ़ाए होंगे। खावर की गोल मोटी आंखों में शिकवा और उदास दोनों थे। नदिया को तो मार भी लेता था, इसके पीछे हस्बे अस्ताए दौड़ कर जाया करता था। मैं चूँकि खत लिखती थी और पढ़ती थी, वैसे भी बड़ी थी, तो खावर बेचारा क्या करता। कोई और वक़्त होता तो मैं बोतल इनसे ले लेती, मगर अब मुझे ज़रा तरस आ गया था। इधर आओ, मैंने इसे उठा ही लिया था। आओ मिलके कंचे ढूंढते हैं, यहीं कहीं गिर गए होंगे। और फिर देखो पलंग के नीचे, संदूक के साथ वाले पलंग के साथ। हाँ, ये एक मिल गया, अब दूसरा भी ढूंढ लेते हैं। नीचे नदिया की गाड़ियों वाला शापर भी मिल गया था। ये है बन्नू। खावर ने मुझे सुनहरी गोटे वाली कमीज़ पहने गुड़िया दिखाई। अच्छा, तो ये है वो जिसके दुपट्टे पर गोटा लग रहा था। गोटे का टुकड़ा लिए बैठे देखा था। वो सुई धागे से गुड़िया के कपड़े सीती थी। उठा ना ले ये वाली। नदिया सहेलियों के साथ बाहर खेलने गई थी, या फिर छत पर होगी। इसीलिए खावर की इतनी जुरायत हुई थी कि इसने नदिया की गुड़ियों में से एक को मुंतखब कर लिया था। अब कि इसकी आंखों में शरारत थी और बगल में बोतल। चलो रखो वापस। मैं अपनी जून में वापस आ चुकी थी। वो पलंग के नीचे शॉपर रख रहा था। ताया के यहाँ ही रक्साना खाला की पहले आमद हुई थी। खाला इन्हीं के घर ज़्यादा रहती थी, फिर बाकी बरादरी के यहाँ मिलना मिलाना होता था। अम्मी खाला आ गई है, बख्शू चाचा ने बताया है। अभी गन्ने लेके जा रहे थे गाँव चकबारा। बख्शू चाचा ने रेहड़ी पे बैठे बैठे ही मुझे इतला दी थी, जब मैं कुकड़ियाँ लेकर खेत से आ रही थी। दिए आ गई है तेरी मासी। सवेरे सवेरे स्टेशन तक सालम तांगा करवाया है तेरे ताई अजमल ने, चाचा खुश होके बता रहा था। और मैं भी बड़ी खुशी खुशी भागी आई थी अम्मी के पास। चल शाम को चलते हैं तेरे अब्बा के साथ। मासी आ गई, मासी आ गई। खावर सारे सहन में घूमता फिर रहा था। खुशी अंग अंग से फूट रही थी। तुम्हारी शादी नहीं हो रही जिसमें शिरकत करने आ रही है। पहले तो तुम्हारी होगी आपी। सच आपी, कब जाओगी यहाँ से? वो भागकर सहन अबूर कर गया था। बाजी इसाल बाजी मेरी बाजी है, बस बाकियों में से कोई तुम ले लो। खावर इसाल बाजी की गोद में था, और नदिया एहसन भाई के साथ लड़की खड़ी थी, और मैं मुबशरा बाजी से चिमटी खड़ी थी। अम्मी खाला से मिल रही थी। रक्साना अम्मी के बाद तो मैं। अम्मी नानी के इंतकाल के 2 साल बाद ही संभल नहीं पाई थी। अब भी फूट फूट के रो पड़ी। अब बस भी कर दे, क्या हर वक्त रोना धोना मचाई रखती है। ये अजमल मामू थे, जिन्हें न जाने किस बात पर गुस्सा आ गया था अचानक ही। इसे तो अल्लाह जाने क्या है, याद ही नहीं करता माँ को। अम्मी रक्साना खाला से अलग होकर आंसू पूछ रही थी। ये दोनों बहनों का मेका था। नानी थी तो अम्मा का भी घर था, क्योंकि मामू तो वैसे ऐसे ही थे। अब नानी के बाद वो सिर्फ रक्साना खाला का मेका रह गया था। शायद अम्मी का नहीं, मगर अम्मी को ये समझाता कौन। मुमानी अपने होने वाले दामाद के लिए बोटियों और तरी वाला सालन निकाल कर रख रही थी। अफजल मुबशरा और बाजी को देख रहा था और नहाल हुए जा रहा था, जबकि एहसन बाजी कोसर बाजी के लिए बेचैन थे। वो अक्सर ही यहाँ पाए जाते थे। इन्हें गांव की आबो हवा आ गई थी, या शायद कोसर बाजी की नज़र उन्होंने इन्हें जकरा था।
दूसरी वजह ज़्यादा बारीवर कम थी। इनकी मोहब्बत किसी से लुकी छिपी नहीं थी। सदीका अहसन भाई के साथ लगी थी। हसन हमारी ही उम्र का था, लेकिन मुझसे और सदीका से ज़रा बड़ा था, जो इन दिनों साले अव्वल में था। हसन भाई, मैं आपको अमरूद तोड़ के दिखाऊंगी। सदीका इसे बाजू से थाम रखा था। हाँ ज़रूर, और सैर को भी चलेंगे, लेकिन पहले मैं नहा लूँ, बहुत थक गया हूँ। मम्मी साबुन दे दें मुझे। और मम्मी जल्दी से साबुन लाने लग दौड़ी। मुर्गियाँ ज़ख्मी हो गई थी, रोटियाँ नाइन लगा रही थी। ले बीबी साबरा, रोटियाँ हो गईयाँ। अब तंदूर ढाँप रही थी। किसी दूसरे ने रोटियाँ लगानी हो तो सेंक, तपश अभी बहुत है। वो तंदूर को घड़े से दाग कर जा रही थी। ज़ाहिर है हम आए हुए मेहमान ज़्यादा थे तो खाना भी ज़्यादा ही था। हमारा वापस जाने का इरादा था। शाम हो रही थी। वापसी पर जाते जाते अंधेरा ज़्यादा हो जाता। अब्बा घर पर अकेले थे। ताया जी से वो कल मिलने आते। सारा सूट तबाह कर दिया तूने। मामू दहाड़ उठे थे। अम्मी पानी से हाथ धोकर पीछे हटी तो ज़रा सा पानी इन पर भी गिर गया था और वो गज़बनाक हो गए थे। बात इतनी थी भी नहीं जितना इसे भड़का दिया गया था। अम्मी दुखी हो गई थी। वो लंबी कच्ची सड़क पर हमें लिए बाहर निकल आई थी। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा था, मगर क्या कर सकती थी। सूरज दूर खेतों में तांबे के बड़े गोले की तरह डूब रहा था। गुरूब हो रहा था। अम्मी और मामू के तलकात भी ऐसे ही गायब हो जाते तो कितना अच्छा था। है तो मेरा भाई, मगर अम्मी रो पड़ी थी। ऐसे होते हैं भाई। मैं बड़बड़ाई ज़रूर, मगर बोली नहीं। रक्साना खाला शायद कल हमारी तरफ भी आए। खावर बिस्तर पर लेटे लेटे पूछ रहा था या बता रहा था, तुमने सोना है या नहीं। अम्मी घर की हर बिक गया था। नदिया वो तो यूं भी जल्दी सो जाती थी। मेहमान तो मामू के थे और हमने यूं ही अनाज के ढेर जमा कर लिए। अब पता नहीं हमारे घर मामू इन्हें आने देंगे या नहीं। मैंने इन्हें जो जो दलेरियाँ दिखानी थी, सारे ख्वाब मुझसे पहले कम लेट होना शुरू हो गए थे। पंजीरी की बड़ी लुबाबत बड़ी प्लेट चाचा लादिता के यहाँ से आई थी। गरम पंजीरी में से देसी घी की महक उठ रही थी और इसमें उंगली डुबो डुबो कर खा रहा था। और नदिया बेचारी जब भी उंगली करीब लाती, जलने का डर इसके गिर्द डेरा डाल देता। अब वो चम्मच की तलाश में बागी फिर रही थी, जबकि खावर जल्दी जल्दी हड़प करने के चक्कर में था। अम्मी, ये हलवा किस खुशी में था। मैंने अम्मी से पूछा। यहाँ दाद खीर से वड्डा अफसर हो गया है। नहरों के महकमे में इसी खुशी में सबका मुंह मीठा करवाया है। बरा अल्लाह दित्ता ने, अम्मी ने कहा। अच्छा, जहाँ दाद। मेरी नज़र में जहाँ दाद का सरापा घूम गया था, वो शहर में पड़ता था। अक्सर ही गाँव आते जाते इसे देखा था। छोटे लम्हे बैग को कंधे से लटकाए वो खेतों में से आते हुए वो शहरी ही लगता, गांव का वासी नहीं। वो सबको सलाम करता था। गांव में आता जाता भी था और घरों में भी आता जाता था। और फिर वो मोटी मोटी किताबें पढ़ने वाला बाबू एक अजीब काम करता था। वो दरान नदी पकड़ के पट्ठे चारा काटता था और फिर मशीन में बरीक बरीक करके भैंसों के आगे डालता था। इसमें मैं भी महारत हासिल की। खाला आ गई। मैं और नदिया चाचा अल्लाह दाद के घर बैठे थे। फरजाना से मेरी अच्छी की दोस्ती थी। वो दुपट्टे पे बैल काटने में मसरूफ़ थी। वीज़ के बैल बूटों पर कढ़ाई मुकम्मल थी। सिर और दुपट्टा बाकी बचा था। महा, मैं तुम्हें भी ऐसा ही दुपट्टा काट दूंगी। वो सब्ज़ दाके में उलझी उलझी बोली के खावर भागता हुआ चौकरियाँ बढ़ता चला आया था। एहसन भाई, हसन और खाला और आपियाँ भी आई हैं। अब जब मैं मायूस हो गई थी तो वो आ गए। अब्बा ताया जी से मिलने के बाद लकड़ियाँ काट रहे थे और अम्मी पुलाव के लिए प्याज काट रही थी। अस्सलामुअलैकुम एहसन भाई। मैंने एहसन भाई को सलाम किया था, फिर हसन भाई को। मुबशरा आपी और इसाल आपी ने मुझे गले लगाया था। महा, जा रहमत अली के घर में मुर्गियों का कहकर आई हूँ। तेरी खाला से पकड़ी नहीं जा रही तो और खावर मिल के पकड़ लाओ और जल्दी आना। मैं और खावर उठ के चल दिए, पीछे पीछे नदिया भी। खाला, मैं भी इनके साथ चली जाऊँ। और हसन भी हमारे साथ चल पड़े थे। तुम्हारा गांव बहुत खूबसूरत है। बहती नदी के शफाफ पानी में हसन ने झांक कर कहा था। हमें तो गांव में ही होना चाहिए था। यह हसन मनाजर शहर में कहाँ। हसन ने ख्वाहिश की, तो इन मनाजर को निगाहों में भर लीजिए और ताज़ा दम रहिए। मैं मुस्कुरा उठी और खावर ने चलो भर कर
चुल्लू भर कर ठंडा पानी इन पर फेंक दिया। वाह भाई, तुम तो बड़े अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करती हो, वो हंस कर बोले। ये सदीका कौन सी क्लास में है भला? वो जहन पर जोर देकर बोले, 8वीं। खावर फिर बोल पड़ा था, खैर तुम तो इसके बरकत संजीदा और ज़िम्मेदार हो गई हो। वो तो जैसी पिछले बरस छुट्टियों में थी, अब भी वैसी ही है। मुर्गियाँ पकड़ के हाँफता हुआ खावर भी मुर्गा ही लग रहा था। अब करता है तेरा बंदोबस्त, वो बड़ी चोंच वाले गसीले मुर्गे को घूर कर बोला। बहुत गुस्से में है ये मुर्गा, हसन ने खावर को बताया था, क्योंकि वो तेज़ चोंच खोले से चुटकी बनने का इरादा बांध रहा था। बड़े चूल्हे पे अम्मी पुलाव का देचका धरे खाला से महू गुफ्तगू थी। अब तुम खुद ही सोचो भाई शम्स का मामू जान रवैया मेरे साथ ठीक है, मेरा भी मेका है। कभी जाऊँ तो ऐसे ही बहाने बना के शुरू हो जाता है। जब से अम्मा गई है मुझे तो वो घर अपना घर लगता ही नहीं। खाला मुर्गे की टांग से नवज़मात थी जो अम्मी ने इन्हें बनाई के वक़्त निकाल दी थी। एक ही भाई है हमारा, पता नहीं मैं इसे इतनी बुरी क्यों लगती हूँ। मुझे तो देख कर ही इसके तेवर बिगड़ जाते हैं। तू भी तो बहन ही है ना, तो चलो तेरे घर रिश्ते कर रखें। मैं भी बस तेरी वजह से आ रही थी। इस साल आप ही मुबशरा आप ही पुलाव पकने का इंतज़ार कर रही थी। ये पुदीना किसने लगाया है? हसन भाई ने पुदीने की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए मुझसे पूछा था। मैंने लगाया है, जब कभी दिल चाहा चटनी बना ली, रायता बना लिया, फिर खुशबू सारे घर में फैली रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि तुम तो सारी की सारी अच्छी हो माँ, वो मुस्कुरा कर बोला। फिर छुट्टियां ख़त्म हुई और वो वापस लाहौर के हंगामों में खो गए थे। अब अगली छुट्टियों में फिर मिलना था। हसन भाई की तारीफ़ पर मैं बहुत खुश भी थी और हैरान भी। उन्होंने मेरी तारीफ़ ही की थी या इन नज़रों में पसंदीदा भी कुंडी मारे बैठी थी। सर्दी की रातें सितारों से बड़ी थी और मैं ये सोच बिगाड़ने के चक्कर में थी कि वो मुझे पसंद कर बैठे थे। शम्स मामू लाहौर गए थे और अपने साथ खुशबूदार बासमती चावल, गुड़, मक्खन, देसी घी और मेवे बड़ा हलवा बनाकर ले गए थे। बड़ी बात इस दफ़ा सदीका भी इनके साथ गई थी और हमें कानो कान खबर भी न हो सकी थी। सदीका महीने भर के लिए वहाँ रुक गई थी। इस बात की खबर हमें यूँ हुई कि इस दफ़ा सर्दियों के कपड़े हमने लाहौर के अनारकली बाज़ार से लेने का फ़ैसला किया था। सुना था कि वहाँ आला से आला जूते, कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। इस बाज़ार की तो धूम सी हमारे जग में। इस बार मैं नदिया और खावर अब्बा के साथ लाहौर जा रहे थे। फिर ठोकर न्याज बेग से होते हुए हम खाला जान की तरफ आ गए थे। मैं और नदिया सदीका को देख कर हैरान रह गए। वो वहाँ उठलाई फिर रही थी। मामू ने अहसन भाई के लिए तो कोसोबाजी का रिश्ता दिया ही था। अब वो सदीका के लिए हसन को पसंद करने लगे थे, क्योंकि इनकी आमदरफ्त यही बताती थी। खैर बड़े बरामदे में बैठी खाला जान से मिलकर वो कोल्ड ड्रिंक हलक से उतार रहे थे। और सुनाओ जमील भाई, खाला जान अब्बू से बातें करने लगे थे। अब्बू मुंह हाथ धोकर पंखे तले महसूस कर रहे थे। बेहतर, आहा माहा आई है। हसन खुश नज़र आ रहे थे और सदीका के मुंह पर 12 बज चुके थे। इसके ऐसे इस्तकाम पर मुझे हैरत हुई थी। वो हसन के लिए ऐसी है मगर इस रिश्ते से मामू जो इसे खाला जान के हाथ छोड़ गए थे और फिर किसी को खबर भी न होने दी थी। खाला जान के छोटे से घर के दरवाजे से लगी बगैर खुशबू फूलों वाली बेल की तरह सदीका भी इनके बरामदे में लग जाना चाहती थी। फिर यूँ हुआ कि मामू जीत गए। इनकी प्लानिंग कामयाब हुई रही। खाला जान की बहुएं, इनकी दोनों बेटियां सदीका और कौसर बनी। हमें एक तरफ कर दिया गया। ताया जान ने तो हमेशा से बेकार ज़िंदगी गुजारी थी। इन्हें खाला जान के फैसलों का इल्म ना हो सका। मामू जान अफजल भाई को इनके घर का दामाद बनाने के साथ साथ इनके बेटों का अपना दामाद बना बैठे। आप ही बुलाकर तुम यहाँ से जा रही हो? खावर मेरे कान में खुश हुआ था। अलबत्ता नदिया उदास सी थी। जा रही हूँ, मगर इस गांव की दूसरी गली में। अच्छा, ज़्यादा खुश ना हो। मैं भी ममनुमाई, क्योंकि घूंघट में ज़्यादा बोलना कोई सुन लेता, तो इसी वजह से मैं चुपके चुपके खावर को जवाब दे रही थी। तो मेरी मोहब्बत हो, यहाँ दाद ऐसा ही बोल सकता था, ऐसे भी सोच सकता था। मैं हैरान थी। जब जब मैं गांव की रसीली हवाओं और गुनगुनाती नदियों को छोड़ के गया, वहाँ माही तुम मेरे साथ रही। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, जहाँ दाद की निगाहें हमेशा नीची रही थी। तो फिर इसने मुझे देखा कब था? सवाल जो दिल में छुपा बैठा था लबों तक नहीं आया।
چوڑیوں کی چھن چھن جیسے پوری کائنات میں بکھر گئی تھی۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم مل گئے، وہ بولتا اور میں سنتی گئی۔ کیا تم مجھ سے میرے جتنی محبت کرو گی ماہی؟ وہ میری چپ جو حیرت تھی اسے توڑنا چاہتا تھا۔ جی، میں یہی کہہ سکتی تھی کیونکہ دل اور زبان میرا اتنا ہی ساتھ دے پائے تھے۔ یہاں داد نے مجھے بتایا کہ محبت کیا ہے، محبت ہے اور ہمت کیا ہے، اور حسن۔ اس سے تو میں نے کچھ نہیں سیکھا، مگر شاید سیکھنا باقی تھا۔ جب میں اپنے